آیت نمبر 105 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 105 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون۔ قال، فرعون نے کہا کہ ان كنت جئت بآیت، اگر تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو فأت بها، پس لا تو اس کو، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فألقا، تو پس ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنا عصا، فإذا ہی، تو پس اچانک وہ عصا، ثعبان مبین، ایک اژدہا بن گیا واضح۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، نمبر 2 دوسرا معجزہ، اور کھینچا انہوں نے اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ، تو پس اچانک وہ ہاتھ، بیضاء، سفید، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ، تو کہا ملأ، سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، کہ ان ھذا، بے شک یہ تو لساحر علیم، البتہ ماہر جادوگر ہے، یہ تو بڑی مہارت رکھتا ہے جادو کی۔ یریدو، اور یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے وہ تمہیں، من ارضکم، تمہاری اس زمین سے، یعنی مصر سے۔ فماذا تأمرون، تو پس ہمیں، فماذا تأمرون، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کل کے سبق کے اندر 2 باتیں کہی تھی فرعون کو، کہ ایک تو میں حق اور سچ بات لایا ہوں جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو چونکہ میں اللہ کی طرف سے منتخب ہوں اور جو بات کرتا ہوں وہ اللہ کی ہوتی ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کی بات سچی اور پکی ہوتی ہے۔ ایک دوسری بات کہی تھی کہ میں جئت ببینۃ من ربکم، کہ میں اپنے تمہارے رب کی طرف سے ایک، یعنی دلیل لے کر آیا ہوں۔ تو پہلی بات کی طرف تو فرعون نے کوئی توجہ نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ دوسری بات کی طرف کہ دو دلیل ہے، تو کہنے لگا کہ اگر تو کوئی دلیل لے کے آیا ہے نا، تو فأت بها ان كنت من الصادقین، تو اس کو لے کر سامنے کر اگر تو سچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جو تو اپنے دعوے کے اوپر دلیل کا ذکر کر رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس پیغمبری کے اوپر میرے پاس دلیل بھی ہے، تو فرعون کہنے لگا کہ پھر وہ دلیل لا، وہ کون سی دلیل ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے۔ یہ اس ظالم نے دلیل کو ماننے کے لیے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ وہ دلیل آئے گی تو میں آپ کو پیغمبر مان لوں گا، وہ دلیل آئے گی تو میں آپ کے مشن کو تسلیم کر لوں گا، وہ دلیل آئے گی تو میں آپ کا جو ہے وہ امتی بن جاؤں گا، اس کے لیے نہیں، وہ ایک طنز کے لیے اور ایک مذاق کے لیے، اپنے مجمع کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے۔ جیسا کہ یہاں ہمارے معاشرے بھی کوئی کہے نا کہ بھائی میں کوئی اس طرح نہیں ہوں، میں بڑے اپنے پاس دلائل رکھتا ہوں، تو آگے تنزن کہا جاتا ہے بھائی تو نے جو چھپا کے رکھا اس کو سامنے کر، تو جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا اس کو سامنے کر۔ تو اس نے بھی تنزن کہا کہ تو پھر وہ دلیل لے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ فَأَلْقَى عَصَاهُ، یہ یعنی سنت پیغمبری ہے، اپنے ہاتھ کے اندر
लाठी रखना, आसा रखना। आजकल तो कहते हैं ना कि जब कोई बूढ़ा हो जाए तो भाई उसको लाठी पकड़वा दो, लाठी पकड़वा दो। नहीं, बूढ़ा हो या जवान हो, ये सुन्नत पैगम्बरी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आपने सुना और पढ़ा होगा सूरह ताहा के अंदर, फिर इसके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फवैद भी जिक्र किए कि इस लाठी से मैं क्या मुझे फ़ायदा हासिल होता है, तो वहाँ वो फवैद भी जिक्र किए। तो बहरहाल ये सुन्नत पैगम्बरी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो आसा अल्लाह के हुक्म से डाल दिया। वो डालना था तो फ़इज़ा हिया सुबान मुबीन, वो वाज़ेह तौर पे एक अजदहा बन गया। वाज़ेह तौर पे मुबीन का लफ्ज़ ये कर रहा है कि उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं था, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, वो बिल्कुलिया तौर पे वो लाठी लाठी नहीं रही, वो आसा नहीं रहा, बल्कि एक अजदहा बन गया, सांप बन गया। और कल के सबक के अंदर आपको बताया था कि उसने जब अपना मुंह खोला और फिरौन की तरफ लपका तो काफिर बुज़दिल होते हैं, वो डर कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया कि मूसा बचाओ, ये तो मुझे खाता है, ये बचाओ, आप इसको पकड़ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे भी फरमाया फ़इज़ा हिया सुबान मुबीन, तो पस वो एक जो है वो सोबान अजदहा वाज़ेह तौर पे बन गया। तो ये मुबीन का लफ्ज़ बता रहा है कि ये जो अमूमन आप शोबदबाजियाँ देखते हैं लोगों की, ये कहनों की, जादूगरों की, वो बाद देखते हैं बाद नहीं देखते, लेकिन मुबीन का लफ्ज़ बता रहा है कि जितने लोग वहां थे उन तमाम के तमाम ने उस लाठी को सांप बनते हुए देखा है। तो एक मोइज़ा। दूसरा मोइज़ा व नज़ा यदहु, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नज़ा किसी चीज को किसी चीज से सख्ती से खींचना, किसी चीज को किसी चीज से सख्ती से खींचना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ खींचा, लेकिन कुरान ने यहां यह नहीं बताया कि यह हाथ कहां से खींचा, लेकिन दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक जगह पे फरमाया कि अपनी बगल से यूं खींचा, बगल पे यूं रखा, फिर यूं सख्ती से खींचा। और एक जगह पे फरमाया अपने गिरबान में यूं रखा और इस गिरबान से यूं खींचा। तो दूसरे मकाम पे अल्लाह ने ये दोनों लफ्ज़ जिक्र किया कि बगल के नीचे से और इस तरह गिरबान पे डालकर इस हाथ को खींचा, और ये हाथ सफेद सूरज से ज्यादा चमकता हुआ निकला, ज्यादा चमकता हुआ निकला। अब इसमें यह भी मतलब शुबा होता है कि हो सकता है हाथ वैसे सफेद हो गया हो या किसी बीमारी की वजह से, जैसा कि बरस की बीमारी की वजह से हाथ सफेद हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 20वें पारे के अंदर इसका भी जिक्र फरमा दिया कि मिन गैर सूइन, कि ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ सफेद निकला, मिन गैर सूइन, बगैर किसी बीमारी के था, खालिसतन ये अल्लाह का मौजज़ा था, इसमें कोई बीमारी नहीं थी। तो फरमाया नज़ा यदहु फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो पस वो जो है वो बैज़ा सफेद हो गया, लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए। तो पता चला यहाँ हाथ का मौइज़ा भी नाज़िरीन तमाम के तमाम लोगों ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल से या अपने गिरबान से जब खींचा तो वो जो है वो सफेद था। अच्छा, अब जो फिरौन के सरदार कहती हैं कि जो किसी भी कौम के बाअसर लोग होती हैं, बाअसर लोग, मालदार लोग, उनको सरदार कहा जाता है। तो फिरौन की कौम के अंदर भी बाअसर लोग थे कि जो अपने माल और दौलत के एतबार से लोगों के दिलों के अंदर, लोगों के यहाँ एक मकाम रखते थे। तो उन लोगों ने कहा फिरौन को कि इन्न हादा लसाखिरुन अलीम, कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का अजदहा बन जाना, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बगल में रखना या गिरबान पे डालना, फिर खींचना तो उसका सफेद आ जाना, इन्न हादा लसाखिरुन अलीम, ये तो कोई महर जादूगर है, ये महर जादूगर है। क्योंकि जिस माहौल में आदमी होता है ना, तो उस माहौल का असर होता है। इन्होंने जादूगरों के अंदर जिंदगी गुजारी थी। ये फिरौन की कौम और फिरौन के मालदार लोग जितने भी थे, तो ये जादूगरों के अंदर जो है
जादूगरों के अंदर इन्होंने जिंदगी गुजारी थी, तो इसलिए वो कहने लगे कि यानी ये कोई महर जादूगर है। लेकिन अलीम के लफ्ज ने इतना बता दिया कि बेशक उन्होंने जादूगरों के अंदर जिंदगी गुजारी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी जादूगरों के जादू के अंदर और मूसा के मौजज़े के अंदर इन जहलों ने भी फर्क महसूस कर दिया कि हमारे जादूगर भी जादू करते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला भी उनके नजदीक जादू था, लेकिन यह है कि कहने लगे अलीम ये हमारे जादूगरों से ज्यादा महर है। तो ये फर्क उन्होंने भी कर लिया। अगरचे फर्क शरी तौर पे जादू और इसके अंदर है, हकीकतन है कि चूंकि जादू की हकीकत ये है कि ये असबाब तबइया के अंदर होता है, बगैर असबाब के नहीं होता। जादू असबाब तबइया के अंदर अंदर होते हैं, अगरचे वो असबाब आम लोगों के सामने जहर नहीं होते और वो मख्फी होती हैं, तो वो जहर न होने की वजह से लोग बेचारे गलती खा जाती हैं। लेकिन मौजज़ा जो है इसके अंदर कोई सबब नहीं होता, ये खालिसतन अल्लाह की कुदरत होती है। अल्लाह अपनी कुदरत का इज़हार नबी के हाथ के ऊपर करता है, इसमें कोई सबब करामत नहीं होता। लेकिन मौजज़े जादू के अंदर जो है वो असबाब का जो है वो असबाब होती हैं, असबाब तबैया के दायरे के अंदर होते हैं, अगरचे वो आम लोगों के सामने जो है वो जहर नहीं होते। तो चूंकि लोग जिस तरह के हो ना, अब ये लोग जो तवीज धागा और जादू टूने वगैरह के अंदर चले हुए हैं, अगर मैं भी जाकर वहां दम करूं ना, तो वो भी वो कहेंगे कि मौलवी साहब आए हैं यार, ये बहुत बड़ा जादूगर है जी, बहुत बड़ा ये टूने करता है। क्यों? उनका माहौल ऐसा है। मैं जाकर कुरान पढ़ के आ जाऊं, कुरान का दम करके आ जाऊं, लेकिन चूंकि आए रोज उनके सामने जो है वो तावीज लिखे जा रही होती है, उनके सामने जो है वो ये सिलसिला किया जा रहा होता है। अगर कोई आमिल न भी जाए, जाकर जो है वो इस तरह दम करके आ जाए, तो कहेंगे जी फलां आमिर साहब आए थे और उन्होंने जो है वो ये जादू निकाल कर गया, कि मुझे जादू का पता भी नहीं है, मैं जादू निकाल भी नहीं सकता, लेकिन चला जाऊं तो कहेंगे जादू निकाल कर गए। क्यों? एक माहौल मिलता है। तो जिस तरह का माहौल हो, इन लोगों बेचारों को माहौल ऐसा मिला था। तो इन्ना हादा लसाखिरुन अलीम, कहने लगे कि ये बहुत महर जादूगर है, महर जादूगर है। अच्छा ठीक है भाई, महर जादूगर है, तो इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? तो कहने लगे युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, इसका मकसद ये है कि इस जादू के जरिए तुम्हें अपने मिस्र से, जो मिस्र का शहर है, इस मिस्र से निकाल दे। आज भी लोग कहते हो जी हमारे ऊपर जादू हो गया, अब इस घर के अंदर रहने को दिल नहीं करता जी, बड़ा जादू हो गया, बस बैर ठीक होता हूँ, लेकिन घर में जाता हूँ तो ये मसला हो जाता है। अब ऐसा करता हूँ मकान बेचता हूँ, भाई मकान बेच के उधर चला गया, वहां किसी ने ये मसला पार हो गया, फिर क्या करेगा? अगर वो भी बेचना है, फिर आगे जाना है, तो फिर ये सिलसिला तो लामतनाही चलेगा कि उस जगह पे मकान खरीदा, फिर ये सिलसिला हो गया कि घर में जाता हूँ सुकून नहीं आता, फिर उधर भी जादू होगा, आगे खरीदेगा, उधर भी यही सिलसिला है, आगे खरीदेगा, ये एक लामतनाही सिलसिला चल पड़ेगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। बाज़ औकात इसका, लेकिन ये याद रखना, जादू का इनकार नहीं है, जादू होता है, जादू होता है, लेकिन ये अमूमन तौर पे उन लोगों के ऊपर होता है कि जो कुरान और सुन्नत से कटे हुए होते हैं, कुरान और सुन्नत से कट जाती हैं और हर काम के ऊपर भरोसा जो है इन्हीं चीजों के ऊपर करते हैं, और फिर जो है वो अपनी सफाई भी नहीं रखते, कपड़ों के एतबार से, तहारत के एतबार से और इन चीजों के एतबार से सफाई नहीं रखते, तो इनके ऊपर असरात आते हैं। लेकिन आदमी कुरान के साथ जो है वो लगा रहे और इस तरह जो है वो दीन के साथ लगा रहे, तो बेशक जादू करने वाले करते रहें, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह का यानी उसका असर नहीं होगा। मेरे ससुर हैं, अब वो बेचारे बूढ़े हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी उनका सिलसिला यह है कि कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। तो आज से तकरीबन 10-15 साल ये था उनका मामूल थे, ये था कि तहज्जुद के अंदर वो 5-5 पारे हर रोजाना पढ़ लेते थे। तो वो एक मर्तबा किसी आदमी के पास गया कि यार मुझे तकलीफ होती है, वल्लाह आलम मैं इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखता। तो उन्होंने, उस आमिल साहब ने उनको बताया कि आपके ऊपर जादू करने वाले बहुत हैं, लेकिन कुरान पढ़ने की वजह से वो जादू आपके ऊपर असर नहीं करता। आप कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं,
تو اس لیے ان کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ اتنی بات کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ انسان قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، قرآن پڑھتا رہے، جو بھی آتا ہے وہ پڑھتا رہے، تو یہ قرآن ہی ان چیزوں کا توڑ ہے، اور قرآن ہی سے انسان جو ہے وہ اللہ کے حفاظت کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حفاظت کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ اس کو جو ہے وہ کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو کہنے لگے یرید ان یخرجکم، اس کا مقصد یہ ہے ان یخرجکم، یہ کہ تمہیں نکال دے من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ اگر اور کسی کو کوئی نہیں بھی آتا نا تو ماشاءاللہ آخری کل جو ہے وہ تقریباً مرد و زن کو آتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس ان دو صورتوں کا ورد کرتا رہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتا تو قل هو اللہ تو آتی ہے، یہ بھی نہیں آتا تو سورہ فاتحہ تو آتی ہے۔ لہذا سورہ فاتحہ بہت ساری امراض کا شفا ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا جو ہے وہ علاج ہے۔ تو بس مرد و زن ان کی تلاوت کرتے رہے، انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فماذا تأمرون، امر یأمر، تو کہنے لگا فماذا تأمرون، اب تم مجھے کیا حکم دے، یعنی ان سے مشورہ لے رہا ہے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ آگے ان کا مشورہ ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا